अच्छा, लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में वी विल गो ओवर सम फॉलो अप क्वेश्चंस वी हैड, बिकॉज हम 2 पे सेशंस कर चुके हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉमन क्वेश्चंस दैट कीप कमिंग अप एंड अगेन, तो हमने उनको एक लिस्ट में डाला है एंड ऑन दिस वीडियो we're just gonna go through them one by one, and if any other things come along we will cover those as well. So let's just get straight to it. पहला क्वेश्चन हमारी शीट पे है कि what is the color of the Upwork logo? Kidding, that was an example question. It's black now for some reason. Okay. First real question. If you're constantly applying to jobs and not getting offers, at what number of proposals should you stop and reflect? So we have answered this काफी दफा in the previous sessions as well. But typically the average where what I'm looking at, if you talk about performance, जो currently system चल रहा है Upwork का, जितने महंगे connects हैं, जितनी competition है, so on so forth, on average across all job categories, if you're applying to, let's say, 50 jobs, उसमें से you should be looking for at least 10 views and around 3 to 4 interviews. That should be a decent ratio on average, बात कर रहा हूँ. अब depending on if you're working on a category जिसमें competition कम है, this number can be better, या जिसमें competition ज़्यादा है, this number could be worse. But on average, for 50 proposals, you should get at least 10 views, and उस पे you should get at least 3 to 4 interviews. Interviews का मतलब ये होता है कि client ने आपका proposal view करके आपको मैसेज किया एंड फिर आगे आपने जो है उसके साथ बात कर ली, तो इसको इंटरव्यू कहते हैं. क्योंकि अगर आप 4 लोगों से बात कर रहे हैं per 50 proposals, that means you should be landing a job. And if you're still not, then there is some problem. Either आप गलत जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लाइंट बहुत गंदे थे, जो कि रेयरली होता है. ज़्यादातर ये होता है कि आपको क्लाइंट क्लोज नहीं करना आता या आपको नेगोशिएट अच्छा नहीं करने आता. तो एक्चुअली द नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डू ऑन फ्रीलांसिंग इज गोना बी ऑल अबाउट हाउ टू टॉक टू द क्लाइंट वंस यू रिसीव अ मैसेज. तो या, एज फार एज रेशो गोज, लेट्स डू सम पेंट वर्क. It says, as I said, you are sending 50 proposals, and this is per month. If you can do, if you are like a big baller spending a lot of connect, इसको आप रखें ratio 1 to 3 months का चले कर लेते हैं. You're sending 50 proposals within 1 to 3 months. You're getting 10 views, and you are getting around 4 interviews. This should be the ratio that you should aspire for. इससे अगर कम ज़्यादा गंदा बुरा है, then there is something wrong with your proposals, or there is something wrong with the search, like the jobs you're searching, or it can also be that you're applying at bad times. कभी कभी क्या होता है कि आप जॉब पे तब अप्लाई करते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ सर्च आई गेस, कि बहुत ज़्यादा प्रपोजल उसमें गए, आप लेट अप्लाई कर रहे हैं, एंड दोज आर लाइक नॉट गुड जॉब्स टू अप्लाई टू. तो या, दिस इज़ द रेशियो you should look out for when we talk about how should your proposals perform. And this is again, as I said, given the current जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है पर का. इफ इट चेंजेस सिग्निफिकेंटली, कल को कनेक्ट्स की प्राइस डबल हो जाती है, जॉब्स हाफ हो जाती हैं, क्लाइंट आते दौड़ जाते हैं, दिस विल सिग्निफिकेंटली चेंज, एंड ऑल्सो इट विल चेंज डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, बट ऑन एवरेज दिस इज व्हाट यू शुड लुक फॉर. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन वी ऐड पोर्टफोलियो without doing any free work? तो I'm not exactly sure फ्री वर्क का क्या मतलब है. इधर यू शुड नेवर डू फ्री वर्क, ठीक है? Like that is just like not good practice. You're devaluing yourself, especially on a platform. हाँ, off of platform अगर कोई बंदा आपसे आता है जो आपसे जान पहचान बनाता है या किसी कम्युनिटी में है, and you do like वो कहते हैं ना, favor for favor, तो yes, for sure do free work, make your portfolio, and then you can show that on Upwork, right? Off of platform it's fine, but on Upwork you should never do any free work. बल्कि मुझे अगर किसी क्लाइंट का मैसेज आता भी है कि यार ये फ्री टास्क कर दो या मुझे ये फ्री चीज़ कर दो, एंड देन आई विल हायर यू, तो उसको सिंपली मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ कि यार देखो, डूइंग एनी काइंड ऑफ फ्री वर्क इज अगेंस्ट Upwork TOS. आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू अनलेस वी स्टार्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. बल्कि मैं तो कभी कभी इतना भी सख्त हो जाता हूँ, अगर मूड ना हो, वो कहता है कि NDA साइन कर दो, मैं फिर कौन तुम्हें जो है जॉब का बताऊंगा. तो मैं कहता हूँ भाईजान देखें, जो Upwork का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके अंदर NDA पार्ट ऑफ इट होता है. तो आपने अगर NDA में से साइन करवाना है, आप पहले कॉन्ट्रैक्ट शुरू करें, तब मैं NDA साइन करूंगा.
तो डिपेंड्स ऑन योर सेंसिटिविटीज, like how badly you want a job or not. But eventually you do have to be kind of strict with who you say yes to, and you have to say no to a lot of people who are just trying to scam you or waste your time. तो फ्री का काम तो कभी नहीं करना. बट इट इज स्टिल अ गुड क्वेश्चन कि अच्छा जी मैं फिर मैंने फ्री का काम नहीं करना, फिर मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं. तो पोर्टफोलियो बनाने के दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी मेंशन कर दिया. डू फ्री वर्क आउटसाइड ऑफ अपवर्क, ठीक है, because that will help you build your network, it will improve your communication skills, and then also it will help you understand how building relationships work. ठीक है, वो upwork से बाहर रखें, उधर ही बनाएं, उसको upwork पे लाने की जरूरत नहीं. बस जब पोर्टफोलियो बन जाए फिर उस पोर्टफोलियो को आप अपने upwork पे ले आएं. तो डोंट डू फ्री वर्क ऑन अपवर्क, डू इट आउटसाइड ऑफ अपवर्क. कहते हैं आप अपवर्क के ऊपर बनाना है अपने पोर्टफोलियो, वो कैसे करें. तो दिस इज what I've defined, I think, हमारे पहले सेशन में, which is like you should try to get in the door, right? Get in the door का क्या मतलब है कि let's say एक प्रोजेक्ट है, एक बंदा कहता है मेरी वेबसाइट बना दो, सही है, उसने प्राइस लगाई हुई है इसकी $2000. वेबफ्लो की वेबसाइट अच्छी है, शशके वाली, डिजाइन डेवलपमेंट, ये वो महंगा प्रोजेक्ट है, लेट्स से. एंड इफ दिस इज लाइक योर फर्स्ट टाइम ऑन अपवर्क एंड यू आर न्यू टू इट, उसको अपने मैसेज में मेंशन करो, प्राइस अपने प्रपोजल पे 2000 या जो भी आपका रेट है, लेट्स से आपने 1850 दे दिया, पर उसमें प्रपोजल में अपने बड़ी छोटी सी चीज मेंशन कर देनी, उसमें कहना है कि यार देखो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन अपवर्क, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन अपवर्क, and I really want to satisfy my first client to be one of the clients I can stick long term with. So if you decide to go with me, I can give you a significant discount on the price that I have quoted above. ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ प्राइस की बेसिस पे कस्टमर को घेर रहे हो, आप उसको एक ऑफर दे रहे हो, राइट. इट इज सेल्स इज ऑल अबाउट ऑफर. और अगर आजकल यूट्यूब देख रहे हो और एलेक्स हरमोजी देख रहे हो चड्डी में फिरते हुए, वो हर वक्त ऑफर की बात कर रहा होता है, राइट. तो कॉज यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन योर कवर लेटर कि यार देखो मैं नया हूँ प्लेटफॉर्म में, आई एम लुकिंग फॉर पोर्टफोलियो, आई एम लुकिंग फॉर गुड वैल्यूएबल क्लाइंट्स. Explain this to him कि यार देखो, since you will be one of my first clients, I want to give you a special offer, a discount, a promo, whatever the sexy word you like. You have to position it like that. उसको ये नहीं कहना कि मैं काम सस्ता कर दूंगा. लाइक जो लोग हमारे अक्सर देखते हैं ना, जो रूकी फ्रीलांसर करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, 2000 के जॉब है, वो कहेंगे मैं $50 में कर दूंगा, एंड दैट डिवैल्यूज यू. वो क्लाइंट को उधर ही कहता है कि ओ ये तो काम ही गंदा करके देगा, या ये कोई स्कैमर बैठा हुआ है, या इसको तो काम आता ही नहीं, मैंने 2000 प्राइस लगी, मुझे 50 में कैसे कर देगा. तो इसलिए आपने प्राइस का गैप इतना नहीं रखना, प्राइस का गैप सेम रखना है, लेकिन अपने मैसेज में आपने मेंशन करना है कि मैं ऑफर दे रहा हूँ. ठीक है, मैं सस्ता काम नहीं करके दे रहा, बट सिंस यू विल बी वन ऑफ माई फर्स्ट क्लाइंट्स, आई एम गिविंग यू अ लिमिटेड टाइम ऑफर जो आप अवेल कर सकते हो. अब ये जो ऑफर है, दिस कुड नॉट जस्ट बी के सस्ते में करके दूं, इट कुड बी अदर थिंग्स ऑल्सो. लेट्स से, तो एक तो ऑप्शन हो गया कि अच्छा 2000 की वेबसाइट है, तो मेरे पहले क्लाइंट हो, मैं तुम्हें 1000 में कर दूंगा, दिस इज जस्ट फॉर यू, इट्स अ स्पेशल ऑफर बिकॉज मैं अपवर्क पे नहीं आऊँ. ठीक है, दैट इज वन वे यू कैन डू इट. और यू कुड बी लाइक, अच्छा यार मैं वेबसाइट 1850 में कर दूंगा, लेकिन मैं इसकी तुम्हें 6 महीने फ्री मेंटेनेंस दे दूंगा. ठीक है, 6 months फ्री मेंटेनेंस, जो कि अगर क्लाइंट को पता हो मेंटेनेंस कितनी अनोइंग होती है, ही विल अप्रिशिएट दैट. या फिर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दूंगा कि मैं सोशल मीडिया सेटअप कर दूंगा, मैं तुम्हारे क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कर दूंगा मार्केटिंग के साथ, लाइक तुम्हारा CRM कनेक्ट कर दूंगा, या सो ऑन सो फॉर्थ. तुम उसको एक्स्ट्रा जो है गुडीज दे जाते हो. तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार कंपटीशन बहुत हो गई है, लोग बहुत हो गए हैं, कैसे कुछ करें, तो यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड मोर वैल्यू टू द कस्टमर, राइट. ये तो वर्ड सुना हुआ है, किसी ने घिसा पिटा वर्ड है, वैल्यू ज्यादा देनी है, वैल्यू ज्यादा देनी है. बट हाउ, वैल्यू दो तरीकों से ज्यादा दे सकते हो. ठीक है, वैल्यू दो तरीकों से ऐसे ज्यादा दे सकते हो कि फॉर द सेम प्राइस, ठीक है, जो भी कंपटीशन है तुम्हारी, जितना प्राइस वो चार्ज कर रही है, लेट से वो भी वेबसाइटें 1850 की बना रहे हैं, तुम भी 1850 की बना रहे हो, फॉर द सेम प्राइस यू डू एक्स्ट्रा स्टफ दे आर नॉट डूइंग. तो कंपटीशन क्या कर रही है, वेब फ्लो की डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर रही है. तुम बोलो भाई जब मैंने कॉपी राइटिंग भी करूंगा, मैं सोशल मीडिया भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, आपको सेम प्राइस में 5 एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं. दैट इज हाउ यू प्रोवाइड हायर वैल्यू. एंड व्हाट इज द अदर वे यू प्रोवाइड हायर वैल्यू, फॉर अ लेसर प्राइस
you provide the same work, design dev. तो सारे डिजाइन डेव 1850 पे देने, यू कुड बी लाइक भाईजान मैं जो हूँ ये कम प्राइस में आपको सेम काम कर दूंगा। लेकिन इस वाले ऑप्शन के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का फेवरेट ऑप्शन है, यहाँ पे तो उनका ज़हन नहीं काम करता कि ज़्यादा चीप नहीं होना, अपने को डिवैल्यू नहीं करना, बस इतना डिफरेंस आना चाहिए प्राइस में कि यू आर अ बेटर ऑप्शन। पर इतना ना डिफरेंस ले आओ कि कल को व्हेन यू वांट टू रेज योर प्राइस, तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो और तुम्हें मसला हो रहा हो। दिस वी डिस्कस एक्सटेंसिवली, जहाँ पे हमने प्राइसिंग फॉर द आवर की बात की थी वर्सेस फिक्स प्राइसिंग की बात की थी। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस ऑप्शन, इट इज़ ईजियर टू यूज एंड मोस्ट रुकी फ्रीलांसर्स डू दिस कि बस ये मैंने रेट वो $20 पर आवर के काम कर रहा है, मैं $5 पर आवर पे करूंगा। लेकिन कितनी देर करोगे? 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, तीसरे साल बस हो जाएगी तुम्हारी। फिर जब 5 पे 10 बजे जाने की कोशिश करोगे तुम नहीं जा पाओगे। तो इफ यू वांट टू बी अ स्मार्ट फ्रीलांसर, go for this option. Learn how to improve your skill set, how to provide additional things for the same price. And trust me, 10 out of 10 times, client interview पे जब तुम्हारे साथ आएगा ना, they will always go with you because you will be the person who has the most knowledge on, like, let's say इस केस में Webflow design development, plus you are doing 6 other things जो किसी और ने उनको पिच नहीं मारी. That is how you give better value. ठीक है, मेरा बोर्ड खत्म हो गया, इसको खाली करते हैं and move to next question. How to critically analyze and improve on proposals that haven't converted to offers? That's a really good question. इसमें अब ये सीन है कि we'll have to see कि we might do a proposal review session down the road जहाँ पे जितने भी proposals view नहीं हुए उनमें क्या मसला था, we will cover that. But generally speaking, I think someone said it like Christo or whatever, there are only 4 ways anything can go, any proposal can go, right? 4 ways. अब मैं देखता हूँ 4 ways मुझे याद आते हैं या नहीं आते, but way number 1 is they go with you, right? The client goes with you. Such impressive writing. So that's way number 1. Obviously you want that way most. They don't go with you. ठीक है? They go with someone else, right? That's the other option. And then the other 2 were they ghost you. They ghost सबको, like everyone. And the 4th option is they lost interest. Now this might be exactly those 4 or not, but basically कहने का मकसद ये है कि जो अगर आपका कोई proposal नहीं view हो रहा, these are the 4 reasons why. So like obviously they didn't go with you, they lost interest in the job, या एमी उन्होंने कहते हैं ना स्पैम में जॉब डाल दी, या वो कहते हैं ना चस्का पार्टी विंडो शॉपिंग के लिए जॉब डाल दी, और दे गोस्टेड यू. गोस्टेड का मतलब ये कि देयर माइट बी अ रीजन, कोई हेल्थ इमरजेंसी होगी, बैंक फट गया, मुल्क डूब गया, विच हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड में भी इसको फोर्स मेजोर भी कहते हैं, एफएम के कोई अनएक्सप्लेन्ड या नेचुरल एक्ट हो गया, उसकी वजह से दे कुडंट कैरी ऑन विद द पोजीशन. तो व्हेन यू पुट इट लाइक दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर ना, इट बिकम्स वेरी लाइक अश्योरिंग कि यार इतना इशू नहीं है. लाइक हाँ, वैसे व्हेन यू लुक एट ऑल योर recently sent proposals, it might be like very bad to you कि यार कोई भी proposal मेरा नहीं देखा. But when you think about it, it's just one of these 4 things happen, right? When you visualize it like this, it becomes less confusing, and that gives you the peace, or the, it gives you the comfort. It's fine if you were not able to succeed in like 10-15 proposals, because there are so many other options that could have happened, right? So let's study them also. Like they went with you, good job, you wrote a good proposal. They went with a competitor of you, something the competitor did better than you, so maybe you can improve on that. And then like as I said, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ खास नहीं कर सकते. अब इस वाला जो ऑप्शन है, अगर आप बहुत लाइक दिस, आई ओनली सजेस्ट अबाउट कोई ऐसी जॉब्स आएंगी कभी कभी अपवर्क पे जिस पे आपका बहुत दिल आ जाएगा, जिस रियल लाइफ में नहीं होता. लाइक कोई रियल लाइफ में ऐसे कह रहा हूँ जिस तरह अपवर्क पे फिक्शनल गेम खेल रहे हैं हम, लेकिन रियल लाइफ पे इन द सेंस के जो दूसरे प्रोफेशनल करियर हैं, जॉब मार्केट वाले करियर हैं, उसमें अक्सर ये होता है कोई ऐसी जॉब आती है जिस पे आपका बहुत दिल आया था कि यार काश ये मेरा जॉब मिल जाए, इस पर मैं रेज्यूम भी भेजूंगा, कवर लेटर भी भेजूंगा, नेटवर्क भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, मुझे ये जॉब चाहिए, राइट? इसी तरह अपवर्क पे भी वंस अपॉन अ टाइम ऐसी कोई जॉब आएगी जिस पे आपका बहुत दिल आ जाएगा, विल बी द परफेक्ट फिट फॉर यू. एंड कुछ अरसे बाद यू डोंट गेट एनी व्यू ऑन योर प्रपोजल. तो व्हाट यू कैन डू इज just go to your proposal. I think you can go, let me show कैसे जाते हैं.
Go to your पुराने archived proposal. Let's see. Archived. तो यहाँ पे बाय द वे ऑप्शंस भी लिख रहे होते हैं. अगर विड्रॉ किया है ना तो विड्रॉन का मतलब यही होता है कि चस्का पार्टी थी यहाँ दे गोस्टेड. तो विड्रॉ जिस प्रपोजल का विड्रॉन लिखा हो ना उसमें ये सीन होता है. हायर्ड में लिखा होता है कि हायर्ड एंड नॉट हायर्ड. जॉब इज क्लोज का मतलब है कि किसी और को चलेगी है. तो लेट्स से अगर ये जॉब है, ये जॉब क्लोज की है या विड्रॉन कर ली है वट एवर. सॉरी मैं गलत बोल दिया. विड्रॉन का मतलब होता है कि मैंने विड्रॉ कर लिया प्रपोजल. जॉब इज क्लोज का मतलब है कि दे गोस्टेड या समथिंग. आई डोंट थिंक इट टेल्स के किसी और बंदे ने हायर किया या नहीं. तो आई कैन एक्चुअली गो हेयर to one of my past proposals. I can go to the job posting, and then obviously this job is now closed. You can see and check recent reviews after a long time and see उसमें कोई increase आया या नहीं आया. So if the person hired someone else for the job and they left them a positive review या they left them a positive review, आपस में कोई review exchange हुआ है, you can do that and you can also see other jobs ऑप्शन अवेलेबल बाय द क्लाइंट. तो अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिलती है जिसमें आपको बहुत दिल करता है, चांसेस आपके मैक्सिमम हो, डू दिस. गो इनटू द जॉब, गो टू द जॉब हिस्ट्री, सी इफ देयर आर अदर जॉब्स दैट पर्सन हैज अप्लाइड टू, एंड देन थोड़ा सा अपने प्रपोजल को कस्टमाइज करके ट्राई अगेन एंड मे बी यू गेट इट राइट. दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, बट ओनली फॉर सम. सबके के लिए करना ना बैठ जाना, यूल वेस्ट अ लॉट ऑफ द टाइम. दिस स्ट्रेटजी डजंट रियली वर्क. लेकिन ऐसे कि मैंने बोला कभी कभी कोई ऐसी जॉब आ जाती है जो बहुत अच्छी होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्टोरी करता हूँ. आई यूज टू वर्क एट क्राउडबॉटिक्स. नाउ इट्स अ बैड कंपनी अनफॉर्चुनेटली, बट बैक इन द डे इट वाज अ रियली गुड कंपनी. अब क्राउडबॉटिक्स वाज अ प्रीमियम अपवर्क क्लाइंट. आई थिंक देव स्पेंट लाइक $10 million ऑन अपवर्क हायरिंग पीपल. तो जो बंदे को पता ना कि यार ये क्राउडबॉटिक्स की जॉब आई हुई है, वो तो भाई चले हुए थे भाई, इस ये मस्ट लाजमी क्राउडबॉटिक्स की जॉब चाहिए. So they used to do that. They'll have a lot of jobs open at all the times. So they will reapply and try to get in the door through different means. मेरी तो पहले में लग गई थी तो कैफे, मुझे नहीं पता था इस बात का. बाद में मुझे पता चला कि क्राउडबॉटिक्स इज एक्चुअली अ बिग डील. एंड अगर आप किसी डेवलपर या पीएम अपवर्कर से पूछते हैं आज से 1 साल पहले, क्योंकि तब जाता था, अब उन्होंने छोड़ दिया अपवर्क. एवरीवन न्यू कि अच्छा जी क्राउडबॉटिक्स में लगे हो, बस जी तुम्हारी जिंदगी सेट है. तो इस तरह का आप कोई ना कोई आते रहते हैं अपवर्क पे. इनको एंटरप्राइज क्लाइंट्स कहते हैं. तो अभी भी कोई चल रहे होंगे. आई एम नॉट एक्टिवली अपवर्किंग राइट नाउ, सो आई एम नॉट श्योर. पर कोई ना कोई एंटरप्राइज क्लाइंट घूम फिर रहा होता है जिसका आप जब जॉब पे जाते हो ना, इधर स्पेंड देखोगे, ये जिस तरह नहीं था $5,000 स्पेंड. क्राउडबॉटिक्स का ये जो है, आई कैन पुल इट अप. आई थिंक मे बी इफ आई गो इनटू माय पास्ट प्रपोजल्स, लेट्स सी. बहुत पुरानी बात होगी. आई एम नॉट श्योर if I would be able to find it, but let's try regardless. Da-da-da-da-da. Job is closed, job is closed. बहुत पुरानी बात होगी वो, इधर आ भी नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से भी. जॉब क्लोज. आई थिंक वो आर्काइव होगी. मे बी, probably. I'll click once more. Yeah, वो आई थिंक वो एक्टिव में आता है, कहाँ आता है, आई एम नॉट श्योर. खैर, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज लाइक इट इज अ बिग नंबर, एंड देन लाइक इस तरह जब कुछ आता है तो यू हैव टू लाइक गिव इट वैल्यू. एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन. Major proposal mistakes you remember initially making out that came in your way of getting job offers on Upwork? The major proposal mistakes I made out, okay, I didn't used to care about search metrics. Okay, how many people have applied to the job? Is the client verified or not? What is the rate या price of the job? Client के reviews क्या हैं? Client की paying history क्या है? ठीक है? Client last active कब था? These things I didn't used to care about. पर फॉर मी इट डिडंट मैटर बिकॉज मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहा था, जो कि अपवर्क पे गिन के शायद दर्जन लोग कर रहे थे. तो मुझे इसलिए इतना अफेक्ट नहीं हुआ था. बट लेटर इन माई लाइफ, नाउ दैट आई एम अप्लाइंग ऑन लाइक डेवलपमेंट जॉब्स एंड सो ऑन सो फॉर, जहाँ पे कंपटीशन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है,
these things matter way more. You can't ignore them at all. तो unless आप कोई बहुत निच काम कर रहे हो जिसमें गिन के 5 फ्रीलांसर बैठे हैं अपवर्क पे जो वो सर्विस दे रहे हैं, then yeah, obviously it's easy to compete, right? But if you're doing something जिसमें competition strong है, you have to search properly, and then proposals में लिखने में mistake यही थी कि आपका half the battle is searching the right job. That becomes the proposal mistake. So no matter how good of a proposal you write, if it's not gonna get viewed, it doesn't matter, right? So that's the mistake. That's the mindset I'm trying to push here. Okay, I've seen people जो like yes, कुछ लोग हैं जो proposal लिखते हैं 3 लाइनों का, that is also very wrong. And अब मसला ये कि GPT आ गया तो लोग proposal 25 लाइनों का लिखना शुरू हो गए हैं. That is also wrong. You should write like somewhere in between. जिस तरह हमने बताया कि it should have a hook, it should have your video या reference, it should have 3 things about you, it should have your portfolio, and then CTA. This is roughly the structure we covered in a previous session. That is your proposal. So ये अभी भी true है, लेकिन छोटा भी नहीं लिखना और GPT से लिख के बड़ा भी नहीं लिखवाना. It's kind of sad कि Upwork says कि अपना proposal AI से लिखवाओ, which defeats the whole purpose about, applying to stuff. बट इसकी वजह से अब ये हुआ कि पोर्टफोलियो मैटर्स वे एंड वे मोर, बिकॉज वो आप जीपीटी से इतने आराम से नहीं बनवा सकते चाहो तो, लेकिन इतने आराम से नहीं बनवा सकते. तो या प्रपोजल इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर. आई थिंक हर कोई आजकल प्रपोजल लिख लेता है जीपीटी की हेल्प से. इट्स लाइक दीज थिंग्स दैट मैटर वे मोर, कि डज योर प्रपोजल गेट व्यूड इवन और इट डजंट. Which one to choose as a beginner freelancer? Upwork, payment on project delivery, और milestone? अच्छा, एक सेकेंड. अच्छा, आई थिंक ये क्वेश्चन ना थोड़ा गलत लिखा हुआ है. क्वेश्चन लिखा हुआ है which one to choose as a beginner freelancer at Upwork, payment on project delivery और milestone. आई थिंक तो जो प्रोजेक्ट डिलीवरी फिक्स प्राइस होता ही माइलस्टोन बेस्ड है. तो आई थिंक द क्वेश्चन वुड हैव बिन के वही आवरली वर्सेस क्या कहते हैं फिक्स प्राइस. फिक्स प्राइस में बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है कि यू कैन डिवाइड द प्रोजेक्ट अप इनटू माइलस्टोन्स, एंड यू शुड ऑलवेज डू दैट, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया, you should always divide the project into at least 3 milestones. One should be kick off, कि हाँ जी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें आप 10 से 20% उस प्रोजेक्ट की प्राइस ले लें. सेकेंड शुड बी सम बिग माइलस्टोन, एज द नेम सजेस्ट माइलस्टोन, जिसमें आप तकरीबन 40% ले लें, और फिर जो बाकी जितना भी बचता है, लेट्स से अगर आपने 20 लिया, 40 बच गया, ये आप डिलीवरी पे ले लें. गोल शुड बी कि ये जो पहली 2 माइलस्टोन है, इसमें आपकी टोटल कॉस्ट जो है, कॉस्ट कवर हो जाए, ताकि इधर अगर क्लाइंट आके रौला करे, ड्रामा करे, आपको कोई नुकसान ना हो. एंड कॉस्ट मींस आपकी लेबर आल्सो, राइट, आवरली रोल. ये 40% यूजुअली प्रॉफिट होता है. तो दैट इज हाउ माइलस्टोन स्ट्रक्चर शुड वर्क. द फर्स्ट 2 माइलस्टोन शुड कवर ऑल योर कॉस्ट, एंड द लास्ट माइलस्टोन शुड कवर योर प्रॉफिट. तो दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच इट. अगर आप सोलो फ्रीलांसर है तो ऑब्वियसली आप कहेंगे अच्छा मेरी कॉस्ट तो सारी नहीं है. नहीं, ऐसे नहीं होता. देखो, एक होता है आपका मेरी लिविंग कॉस्ट, मेरा बिल मेरे वो सब कुछ, ये वो, एंड प्रॉफिट इज समथिंग जिसको हम सेविंग्स कहते हैं, राइट, देसी जुबान में. तो आपने ये रखना कि यार अच्छा ये वाले जो पोर्शन है, इससे मेरा जो मैंने जितनी बिजली खाई है, जितनी रोटियां खाई हैं, जितनी पेप्सी की बोतलें पी हैं प्रोजेक्ट करते हुए, जितना टाइम लगाया है, जितना कहीं भी ऑफिस स्पेस में बैठा हूँ, वो कॉस्ट है ना सारी, वो कॉस्ट पूरी हो रही है, ठीक है. एंड देन ये जो प्रॉफिट होता है, यूजुअली वो होता है जो ओवरहेड होता है, जिसको हम सेविंग्स कह जाते हैं. तो अगर आप एजेंसी हैं, देन दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू. लेकिन सोलो फ्रीलांसर कहते हैं इजंट दिस होल माय कॉस्ट? नहीं, दिस होल इज नॉट योर कॉस्ट. योर कॉस्ट इज of the things around you pay for, the bills, the bijli, the khana, the pina, the tools you might be using. Tool cost is a big one. तो cost अपनी अपने पहले 2 milestones में पूरी करनी है, और आखिरी milestone में आपका जो है प्योर प्रॉफिट होना चाहिए, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है. दैट इज फिक्स्ड प्राइस, एंड दिस इज हाउ ऑलवेज यू शुड डू. यू शुड नेवर डू अ प्रोजेक्ट के पूरा प्रोजेक्ट करके बाकी पैसे लूंगा. दैट शुड नेवर हैपन. ओके, देन देयर इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग पर आवर.
per hour में I've told you already, the problem with per hour is कि you are getting penalized for being good, right, being an expert. ये हमने पहले बहुत दफा बात की है. पर आवर पे आई यूजली सजेस्ट कि आप शुरू करें एक hourly रेट से. लेट्स से आपने $20 पर आवर से शुरू किया, इस पे आप काम करें 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 करें. पर लेटर डाउन द रोड, वंस यू हैव अ एस्टैब्लिश्ड प्रोफाइल, यू शुड ऑलवेज ओनली डू पर आवर पे छोटी एंगेजमेंट्स, लेट्स से अंडर 20 आवर्स. इससे बड़ी अगर एंगेजमेंट हो तो उसको फिक्स प्राइस पे ले जाओ. बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि आप हर चीज़ एक घंटे लॉक करते रहे. इट्स नॉट अ लाइफ यू शुड लिव. आपका फ्रीलांसर बनने का मकसद ही जा रहा है, आपने एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ ली. तो आपने क्लाइंट को समझाया कि देखो यार 20 घंटे तक जो है मैं आवरली कर लूंगा, तुम्हें मेरा काम पसंद आ गया, खुश हो, सब अच्छा है, अब फिक्स प्राइस पे आ जाओ, बिकॉज आई डोंट लाइक लॉगिंग आवर्स. एंड फिक्स प्राइस पे हम लोग एग्जैक्ट स्कोप डिफाइन करते हैं, एग्जैक्ट डिलीवरेबल्स डिफाइन करते हैं, एंड उस पर लेके चलते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ आई वर्क. आवरली लॉगिंग जो है हर्ट्स माई प्रोडक्टिविटी, एंड दैट्स नॉट हाउ आई वर्क. विच वन टू चूज एज अ, हाँ एक और बताता हूँ. ये चीज़ अगर क्लाइंट को समझाना बेहतर समझना चाहते हो, तो देर इज एन एक्सेलेंट एक्सेलेंट वर्कशॉप बाय द ग्रेट क्रिस्टो ऑन हाउ टू प्राइस योर सेल्फ. जस्ट यूट्यूब पे जाकर लिखना क्रिस डो प्राइसिंग मेरे ख्याल से, तो उसकी एक वाइट बोर्ड वर्कशॉप है. हम जिस तरह ब्लैक बोर्ड वर्कशॉप कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा. ये क्लाइंट को तुमने ये समझाना है कि भाईजान यू आर पीनलाइजिंग मी फॉर बीइंग एफिशिएंट. डू यू वांट द वर्क डन फास्टर? कहते यस, देन पे मी फिक्स प्राइस. ठीक है, नहीं बट फिक्स प्राइस में तुम जल्दी कर दोगे. तो दैट इज एग्जैक्टली द रीजन, लाइक यू आर हर्टिंग मी कि मैं एक्स्ट्रा घंटे लॉग करूं और फालतू में घंटे लॉग करूं, बिकॉज मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे काम अच्छा आता है, मैं जल्दी काम करता हूं. दिस इज नॉट वायबल फॉर मी इन द लॉन्ग रन. हाँ ठीक है, पहले 10-20 घंटे मेरा काम चेक कर लो, सब कुछ चेक कर लो, उसके बाद आई वॉन्ट फिक्स प्राइस. तो दैट इज हाउ यू सेल फिक्स प्राइस. You close an offer, but soon after you realize you are not fit for it. How do you deal with that? This happens. It has happened to me. दो तरीके चीजें हैं. तो नंबर वन ये है कि यू क्लोज एन ऑफर, किक ऑफ कर दिया प्रोजेक्ट, राइट, किक ऑफ किया आपने, 10% ले लिया. आप क्लाइंट के स्लैक पे गए, आपके ईमेल पे गए, एक दो मीटिंग्स पे गए, और आपने देखा भाई जिन क्लाइंट तो इंतहाई कोई मार्स से उतरा हुआ बदतमीज तरीके इंसान है, इसके तो मैं क्या कहते हैं मुंह भी नहीं लग सकता, इससे मैं सीधे मुंह से बात भी नहीं कर सकता. एंड इट्स जस्ट लाइक अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन यू आर इन, राइट. तो उधर ही जल्दी से जाएं. यू हैव एन ऑप्शन टू रीफंड एवरीथिंग एंड क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट. एंड इफ यू हैव एनी प्रूफ कि क्लाइंट ने कोई बदतमीजी की है या क्लाइंट ने कोई गलत काम किया है, वो उसके स्क्रीनशॉट वगैरह इससे पहले आप ले लें. तो इफ यू डू दिस, tell the client, hey, after working with a couple of days, I found out we're not a good fit, so I'm going to be closing the contract. I hope you find someone else who can do this for you. And ये वो करके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, क्लोज कर दें, एंड दैट इज ऑल. अब आई एम नॉट श्योर का इसमें रिव्यूज का क्या सीन है. कभी कभी अपवर्क रिव्यू की क्लाइंट को ऑप्शन दे देता है, फॉर सम रीजन कोई सिस्टम बग्ड आउट है. तो ये 100% रिफंड जब आप कर दो ना, देर इज नेवर अ सिचुएशन जहाँ पे क्या कहते हैं ऐसा कोई मसला होता है या सो ऑन सो वर्क. तो आप जो आराम से कर सकते हो, रिफंड वापस चला जाएगा क्लाइंट को, एंड यू विल बी आउट सेफ, नो नेगेटिव रिव्यू, एंड यू हैव द स्क्रीनशॉट्स इफ एनी इश्यूज हैपन कि आपने क्यों छोड़ा है. बट दिस इज द अदर ट्रिकी वे कि लेट्स से कि आप बीच में हो प्रोजेक्ट के, यू आर इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आइदर क्या होता है, जो मेरे साथ हुआ था, कि मैनेजर चेंज कर गया, या लाइक जो भी कंपनी में आप काम कर रहे थे कोई नई टीम आ गई, नया कुछ आ गया, ये वो, एंड इट्स लाइक बैड फॉर बिजनेस या वट एवर. उसमें अब ये सीन होता है, अपवर्क पे क्या होता है, एवरी 30 days you can request a review, every 30 days. तो what you should do is कि if you're working with the client, हर 30 दिन बाद उसको कोई यार मुझे रिव्यू दे दो, ठीक है. वो तुम्हें देगा 5 स्टार क्योंकि काम अच्छा जा रहा है सब कुछ. 30 दिन फिर से गुजरे, आपने फिर से रिव्यू मांग लिया, वो फिर से आपको 5 स्टार दे देगा. 30 दिन फिर गुजरे, फिर से उसने रिव्यू मांग लिया, वो फिर आपको 5 स्टार दे देगा. 3 5 स्टार हो गए. अब वो बदल गया बंदा, कोई नया बंदा आ गया जो चवल है, जिससे आपकी नहीं बनती, आपकी लड़ाई होगी, मुंह मारी होगी. वहां पे आप यही काम करोगे, आप रिफंड करोगे उस माइलस्टोन को, एंड आप प्रोजेक्ट अपना क्लोज कर दोगे, क्लाइंट को बता दोगे ब्ला ब्ला ब्ला, वी कैन नॉट वर्क एनी फर्दर, आई एम गोना बी क्लोजिंग माय अपर कॉन्ट्रैक्ट. बस एक चीज मेंशन कर देना, आई विल हेल्प यू इन नॉलेज ट्रांसफर टू एनी न्यू कैंडिडेट दैट यू पिक. इस तरह क्या होता है कि आप कह रहे हो जानी, मुझे तूने अगर नेगेटिव रिव्यू दिया ना, मैं नॉलेज ट्रांसफर नहीं करूंगा, एंड तेरा काम जो खराब हो सकता है. तो इफ यू वांट नॉलेज ट्रांसफर एंड मी हेल्पिंग यू ऑन बोर्ड योर नेक्स्ट पर्सन, मैं अभी अपवर्क का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी पेड बाय यू.
पर आई विल हेल्प यू विद नॉलेज ट्रांसफर। अब नॉलेज ट्रांसफर में यूजली क्या होता है, 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं एंड उतनी देर में रिव्यू विंडो एक्सपायर कर जाती है। तो इस तरह एक तो आप इंश्योर कर रहे हो कि आपको शायद नेगेटिव रिव्यू ना मिले, दूसरा नॉलेज ट्रांसफर आप कर रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो, एंड इट्स लाइक यू शुड ऑलवेज एंड रिलेशनशिप्स ऑन गुड, राइट? इवन दो बंदे से आपकी ना बनती हो, लड़ाई हो, दिस इज अ लेसन आई ऑलवेज से। इवन कॉर्पोरेट में भी आप कोई जॉब छोड़ रहे हो, ऑलवेज लीव ऑन अ गुड नोट। लाइक तुम अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहे हो? कल को कोई पता नहीं होता, किसी का माइंड चेंज कर जाए, किसी का पर्सपेक्टिव चेंज कर जाए, पीपल ग्रो, राइट? पर यू शुड ऑलवेज एंड ऑन अ गुड नोट। तो मैंने भी ये किया था, मैंने जाके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया था एंड मैंने कह दिया कि यार अभी करंट वर्किंग अरेंजमेंट इज नॉट अ गुड फिट फॉर मी, मेकअप समथिंग कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता प्रोजेक्ट पे, वट एवर, या आई एम गोइंग अवे फॉर अ वाइल, वट एवर। तो नॉलेज ट्रांसफर के लिए आई विल हेल्प यू आउट। और ये अगर आपने क्लाइंट से पहले बात करनी है, अगर आप कंफर्टेबल है, बाद में करनी है, डजेंट मैटर, बट द मेन गोल इज कि 2 से 3 हफ्ते उसको ट्रांजेक्शन में हेल्प करो, उसमें रिव्यू विंडो एक्सपायर कर जाएगी एंड देन दे कांट लीव अ नेगेटिव रिव्यू। फर्स्ट केस इज दैट। सेकंड केस इज के लेट्स से वो कहते हैं नॉलेज ट्रांसफर नहीं करना, क्लाइंट बंद है, वो आपको 1 स्टार रिव्यू दे देगा, डजेंट मैटर बिकॉज आपने पहले उससे 3 5 स्टार रिव्यू ले लिए हैं, तो उसका एवरेज आउट करके वो 4.9 या ऐसा कुछ ही रहता है, क्योंकि वो अफर पे रिव्यूज ना वो बहुत डिवाइडेड होते हैं। तो 1 स्टार तो कभी नहीं मिलता किसी को, क्योंकि कुछ ना कुछ वो 10 चीज़ों पे स्टार मांगता है, कि हर चीज़ पे बंदा 1 स्टार रेयरली देता है। मैंने नहीं आज तक 1 स्टार रिव्यू देखा, मिनिमम 3 स्टार होता है यूजली, ऐसे ज़्यादा। तो वो 3 5 5 5 जो है आपका हो जाएगा क्लियर। या फिर ये होगा कि क्या कहते हैं, वो क्लाइंट जो है बस कुछ नहीं कहेगा मोस्टली ये होगा, चला जाएगा, ना वो रिव्यू देगा ना वो बात करेगा, और क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट आपका बंद हो जाएगा। तो दैट्स जस्ट हाउ इट इज के दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अपवर्क गिव्स यू दिस ऑप्शन कि हर 30 दिन के पीरियड के बाद यू कैन रिक्वेस्ट अ व्यू, कीप रिक्वेस्टिंग दोज रिव्यू। एंड अगर क्लाइंट कहना कि यार बार बार मेरे से रिव्यू क्यों ले रहे हो हर 30 दिन बाद, तो उसको वो भाई मैं अपनी परफॉर्मेंस जो जज कर रहा हूँ ना, मैं सेम, मैं पहले दिन जब आया आपने मुझे 5 स्टार दिए, फिर दूसरे महीने आपने मुझे 5 स्टार दिए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तीसरे महीने भी 5 स्टार लूँ ना आपसे, तो मेरी सर्विस ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, आई वांट फुल ट्रांसपेरेंसी, मैं इसलिए बार बार रिव्यू मांग रहा हूँ, ठीक है? एंड प्लीज डू गेट दीज मल्टीपल रिव्यूज, दे रियली प्रमोट योर प्रोफाइल, स्पेशली इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म क्लाइंट, ठीक है? तो दिस इज रियली गुड एंड स्टैक दोज 5 स्टार रिव्यूज फ्रॉम द सेम क्लाइंट। अगर कोई क्लाइंट बहुत अच्छे रिव्यूज लिखता है उसे लिखवाओ, अगर वो कहते तुम मुझे लिख के दो, तो फिर उसको अच्छे अच्छे रिव्यूज लिख के दो, सही कीवर्ड डाल के, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अब्यूज दिस ऑप्शन है, मतलब अब्यूज नहीं कर रहे, आपका राइट बनता है, क्योंकि जब हम एजेंसी हैं उसमें भी बात करते हैं, हम क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स और वो लेते रहते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग, दिस इज अ रियली गुड फीचर ऑफ अपवर्क, एक्चुअली वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट अपवर्क जितना हम उस पर लाइक हेट करते हैं वैसे। तो ऑलवेज टेक रिव्यूज। अच्छा जी, अगला, what are some of the qualities a beginner freelancer on Upwork can develop to truly stand out from others? यार इस if you're a beginner on Upwork, just वही वाली बात है, बेसिक्स को फॉलो करो, बट इफ यू वांट स्टैंड आउट, जैसे कि मैंने पहले बात की, राइट नाउ इन द करंट इकोसिस्टम, पोर्टफोलियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। एंड पोर्टफोलियो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये नहीं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा दिए, explaining your portfolio, detailing it out, your process behind it, जो पिछले हमने वर्कशॉप सेशन में कवर किया था, टास्क बेस्ड वर्सेस नॉन टास्क बेस्ड पोर्टफोलियो एंड ऑल दैट। सो पोर्टफोलियो आई वुड बी, सबसे ज़्यादा मेहनत अपने पोर्टफोलियो पे लगाओ, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं राइट नाउ एज इट करंटली स्टैंड्स, बाद में मैं कुछ नहीं कह सकता। Should we take a project if we are not 100% sure that I can complete this project? Like I have done some related work, but not same should I take it? If yes, then should I take milestone payments? What's if I'm not able to complete the project? अब ये कोई बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात हो रही है आई गेस, पर द थिंग इज इफ यू आर नॉट 100% श्योर कि आप यू कैन डिलीवर ऑन द प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, बिकॉज इट डिपेंड्स, राइट? लेट्स से 2 हफ्ते का प्रोजेक्ट है, देन ऑब्वियसली डोंट टेक दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज 2 हफ्ते में कोई वही तो आएगी नहीं कि तुम्हें वो प्रोजेक्ट करना आ जाए, तो यू मोस्ट लाइकली फेल एंड इट विल बी अ नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर यू एंड फॉर योर क्लाइंट एंड इट्स अ डिससर्विस टू योर क्लाइंट। बट लेट्स से 6 महीने का प्रोजेक्ट है, राइट? तो ऑब्वियसली इफ इट इज लाइक देयर माइट बी सम थिंग्स दैट यू माइट बी अनश्योर अबाउट, लेकिन अगर लाइक लेट्स से डेव का प्रोजेक्ट है और कुछ चीज़ें जिनको आप श्योर नहीं हो, आप क्लाइंट को बता दो कि यार ये जो 3 4 चीज़ें हैं, ये R&D पे डिपेंड करती हैं, तो आई विल डू R&D एंड गेट बैक टू यू ऑन इट, बट बाकी सारी चीज़ों का हम प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट इट।
ये वाली चीजें R&D पे डिपेंडेंट है, यू नो हाउ डेवलपमेंट वर्क्स, इंटीग्रेशन चेंज, एपीआई कैसे लगेगा, स्टैक क्या होगा, तो दैट ऑल नीड्स R&D टाइम. तो आई विल फिगर आउट अ सोल्यूशन फॉर यू, बट दैट विल जस्ट टेक टाइम. तो आपके पास 6 महीने हैं, उसमें से आप 2 हफ्ते R&D पे लगाते हैं, इट्स फाइन. तो इट्स ऑल अबाउट कि टाइम कितना है, राइट. देन ऑब्वियसली आया था कि सस्ता महंगा कितना है. अगर सस्ता प्रोजेक्ट है, जैसे $250 का प्रोजेक्ट है वर्सेज $10,000 का प्रोजेक्ट है, तो 250 में सेम वही बात. डोंट डू दैट बिकॉज देर इज नॉट इनफ बजट फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट इन वेस्ट टाइम. पर अगर $10,000 का प्रोजेक्ट है, then sure, you can take some money from this, let's say $500 निकाल लिए, and hire an expert to get consultancy on that issue you're not sure about, right? तो it's on a spectrum, like time wise and cost wise. अगर project high ज़्यादा लंबी देर का है या ज़्यादा पैसों का है, generally it is safe to take that project because you should figure out how to deliver on the things you're unsure by either doing your or R&D या hiring someone to do that part with you or help you do that part. And if it is on a shorter timeline and on a lower budget, don't take that project because that will be bad for you and the client, and it's not a good thing. And that covers all our questions. Balle 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 balle. अब we can do live QA अगर करना है तो आ जाओ. और एक्चुअली मुझे आउटरो फेंकना पड़ेगा ना. अच्छा, आउटरो फेंक दो एक सेकंड. आउटरो आउटरो बेसिकली यही है कि I just wanted to do some thing different this week because a lot of these questions keep coming up again and again. Sheet nikali ek us pe dala. I will keep that sheet open for further questions. If you want to, list your questions, it will be linked in the description. And maybe we'll do one more of these sessions if enough questions are gathered over time. And right now we're gonna continue doing a live Q&A on Discord where you can join and see how that goes next week.